Hello. Today we step into a world where history is not just remembered but lived. Our guest is someone who carries century of legacy on his shoulders and yet speak of the past with vision of the future. Professor Ali Khan Mahmudabad is the custodian of Mahmudabad Palace, part of 20-acre Kila Mahmudabad, a historical and beautiful estate founded in 1677. Beyond being a historian by inheritance, he is also a scholar, a professor of political science at Ashoka University, and a voice deeply engaged in questions of culture, identity, and memory. He is not only preserving a palace, he is preserving a way of life, a living archive of Avdi heritage. It's an honor to have with us Professor Ali Khan Mahmudabad to take us on a journey through history, architecture, culture, and spirit of Mahmudabad Palace. सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई. So, welcome, Professor, to our show, and thank you so much for giving us time also. We are so glad, and this place was in my list from many years. मैं बहुत टाइम से यहाँ पे आना चाहता था और आपको शायद याद नहीं होगा मैंने बहुत पहले एक मेल भी भेजी थी just to shoot this place for the photography, not for the podcast. तो thank you so much. अब I'll start my first questions. Early history of Mahmudabad. जी. If you can tell us about that. So thank you very much for coming here with all your team, and Thank you. sorry that it's not very comfortable. No, but- it's very comfortable. Trust me on this. Please don't say that again and again. It's very comfortable. No, it's a small world. I think you met my brother-in-law Yes. in Goa, and then Mr. Manav. Yeah. Manav, Dada, and so Mahmudabad, my father's ancestors, हम लोगों के जो पूर्वज थे, वो तकरीबन 13वीं शताब्दी की शुरू में, Okay. यानी 13th century, around 1202. Okay. 1202. They came from Baghdad to Multan. Okay. And that time they had bought robes of honor and gifts and sanads, in a sense. Sanad. Any sort of, in a sense, they were investing the rulers of India at the time Okay. with the authority of the Caliph of Baghdad. तो वो एक तरह से ambassador बन के आए थे, Oh, lovely. राजदूत सफीर बन के आए थे. And then they stayed. They stayed They here. stayed, and they initially settled in Amroha. Then eventually, they were initially religious judges. Okay. Qazi the wo log. Then eventually they got into military service in Tughlaq's time, Muhammad Tughlaq's time. If you remember, he at one point was very worried that there was a conspiracy in his court to throw him out. Oh my God. Okay. तो उसने दौलताबाद बनाया था अपना कैपिटल, which is अच्छा. 1 month's march south of Delhi. So जब उसने वो किया, so he sent everyone out, all his people in the court, Okay. तो सब पर शक किया. Okay. तो हमारे पूर्वज जो थे वो इस इलाके में भेजे गए थे. आप नजर रखने के लिए. नहीं, नजर से दूर नजर से दूर करने जिला के लिए. वतन, एक तरह से जिला अच्छा. वतन तो क्या खैर, लेकिन एक तरह से बहुत दूर भेज देने के लिए कि ये लोग कुछ कर ना मिटनी या कुछ कर ना पाए. Okay. तो ये इलाके जो थे, ये जो अवध का अब इलाका कहलाता है, these were all आदिवासी Okay. sort of tribes who were here, bamboo jungles. In fact, up until 150 years ago, thick bamboo jungles in this entire area. Oh wow. Okay. अब तो खैर UP is one of the most densely populated Densely populated. places. Bamboos तो बहुत कम मिलते हैं अभी. Bamboos बहुत कम मिलते हैं. तो वो खैर, long story, I'll skip a few centuries. So उस ज़माने में बिलहरा एक जगह है. इसके few centuries. That's very interesting. बिलहरा बसाया गया. हाँ, बिलहरा पहले आया था. पहले Yes. बिलहरा आया, वो 14th सेंचुरी में था. फिर वही जो हम लोगों के पूर्वज हैं, वो मुख्तलिफ जो डायनेस्टीज आईं, उनकी सर्विस में गए, कभी रिलीजियस जजेस, कभी मिलिट्री कमांडर्स वगैरह वगैरह. मुग़लों का जब ज़माना आया तो नवाब दाऊद ख़ान थे जो अकबर की फ़ौज में थे, जनरल थे.
और रणथंबोर में एक मोर्चा हुआ था, उसमें वो आपके सिनेमैटिक इफेक्ट सिनेमैटिक इफेक्ट आ गया। कुदरती आ रहा है, ऊपर वाला भेज रहा है कि आपको कोई कंप्यूटर से कुछ नहीं डालना है। तो वो उनके बेटे नवाब महमूद खां थे, तो 16th सेंचुरी में ही फाउंडेड महमूदाबाद, ओके। and he was basically given titles by the Emperor Akbar of Khan Bahadur and Raja and so on, hereditary title. ओके। और उस ज़माने में जो तोहफे तहफ़ दिए जाते थे, तलवारें और ये वो सब दिया गया, और फिर महमूदाबाद बसा। ओके। तो महमूदाबाद एंड बिलहरा कोलैटरल ब्रांचेस ऑफ द सेम फैमिली एसेंशियली। ओके। फिर ये था कि होते 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 skipping a few centuries again, 19th century, ये है अमीरुद्दौला, this is my great great grandfather, अमीरुद्दौला। अमीरुद्दौला अमीरुद्दौला, अमीरुद्दौला मोहम्मद अमीर हसन खां, उनके साथ उनके दोनों बेटे महाराजा मोहम्मद अली मोहम्मद खां जो बड़े हैं, और साहबजादा मोहम्मद अली अहमद खां जो छोटे हैं। He died in his youth. Oh, So okay. Amiruddola's father fought the British in 1857. Wow. And he died fighting the British. द मेन क्रांति। And where we are, exactly, and where we are sitting today, यहाँ जहाँ बैठे हैं, ये एक तालाब है इस तरफ। हाँ, देखा है मैंने। बारिश में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो ये तालाब की उस तरफ तोपें रखी गई थी, और पूरा किला ये ढा दिया गया था। ओहो। तो ये फिर से बना। तो किला बुनियादें तो 16वीं सदी की हैं, हाँ। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये 19वीं सदी का है। 19वीं सदी। 19वीं सदी जब हम बोलते हैं 1800, 1857 के बाद का, 57 के बाद। 1860s 70s में बना, 80s में धीरे धीरे, अब जाहिर है एकदम से पूरा तो नहीं बनता है। हाँ हाँ, पूरा नहीं बनता। तो अगर कभी मौका मिलेगा मैं आपको पुराने फोटो भी दिखाऊंगा कि वो जैसे ये टुकड़ा बना, फिर दूसरा टुकड़ा बना। नहीं, वो फोटो देखने भी हैं हमें, एंड वी वांट टू कैप्चर इन द वीडियो। Yeah, so you can also sort of show viewers, because it's very interesting. Yes. And where we are sitting, as it happens, you know, these walls, these are untouched since the 19th century, आई कैन सी दैट, late एंड 19th century. दैट्स द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ दिस। हाँ, असल में वही होता है कि नई दुनिया जो हमारी है, जदीद दुनिया, उसमें हर चीज़ नई अच्छी लगती है, लेकिन कभी और खूबसूरत लगती है, या कम से कम मार्केट्स हमको ये बताती हैं, लोग हमको बताते नई चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। नई चीज़ें अच्छी साफ़ हों, विदाउट ब्लेमिश हों, कुछ हो। लेकिन अगर आप देखिए तो जो पुरानी इमारतें जिनको ज़्यादा छेड़छाड़ जिनकी ना हुई हो, तो वो अपनी एक दास्तान बताती हैं। नहीं, कहीं ऐसा दीवार ही में 10 किस्म के रंग हो जाते हैं, 10 किस्म के रंग मौसम हो की वजह से, कहीं पानी का असर है, तो वो जो अंग्रेजी द फेडनेस, दैट जी, कलर। in fact it's a strange, in a sense I would say there's a strange beauty in decay में भी एग्जैक्टली। एक खूबसूरती होती है नहीं, जो हम मैं- लोग सोचते नहीं हैं जिसके बारे में। मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा था, और इस हिस्ट्री आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री ऑलवेज। जो यूथ भी है, जो नई जनरेशन भी है, हमें ऐसा लगता है कि उनको ये पसंद नहीं है, जी बट टेक्निकली उनको बहुत पसंद है। जी आप कहीं पे भी जाओगे, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, लॉट ऑफ पीपल गो एंड टेक द पिक्चर। आज भी आई डोंट गो मच देयर, दिल्ली का कुतुब मीनार, आज भी वहाँ बसें खड़ी रहती हैं, भीड़ लगी रहती है। लोधी गार्डन में बहुत भीड़ होती है, तो ऐसा नहीं है उनको। हुमायूं टॉम जो है, हाँ, तो भीड़ वहाँ जाती है और लोगों को बहुत पसंद है, बट उनको ये वाली ब्यूटी देखने को नहीं मिलती, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस रेस्टोरेट, उनका सबका रेस्टोरेशन हो चुका है। पुरानी और वो असल में अगर आप देखिए तो रेस्टोरेशन कम और रेनोवेशन रेनोवेशन ज़्यादा है, ज़्यादा है, हाँ, क्योंकि रेस्टोरेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक अगर चीज़ जहाँ पर है उसी को उतने हाल पर उसको मजबूत करके छोड़ दीजिए, मजबूत करके छोड़ देते हैं। हाँ। क्योंकि वो फिर बात, वो कारीगरी, वो रंग, वो तेल, वो सब आप पैदा ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। बहुत पुरानी वो पिक्चर्स हाथ, हैं यानी जो वो हाथ जो लगे थे उस जो टाइम लगे थे। अब जैसे ये भी इमारतें जितनी हैं, या जो भी जहाँ बड़ी इमारतें हैं, तो अक्सर जाहिर है हम लोग हमारे वालिद कहा करते थे कि ये सब जैसे किले और ये महल और मकबरे और बड़ी बड़ी जगहें, ये किसी परिवार या किसी ख़ानदान से जुड़ जाती हैं, बट people forget the people who actually made them. Who will be the ancestors of a lot of the people who are in this area? I'm And sure, असल में तो उन्हीं की हाथ में वो था, उन्हीं की हमारे खूबसूरती हाथ में नहीं हो, तो लगान आपने बस लेके कमीशन या किया था उनको। हाँ, पैसे देना तो एक आसान काम है। तो जो असल खूबसूरती थी वो एक है
अक्सर मैं पढ़ा करता हूँ, अब्बा ही से सुना था कि कोई शोर ये तो पूछे दरोबा में खुसरवी से कि है किसके खून से रोशन ये चिराग कचकुलाही। तो कोई शोर अलीगढ़ के एक शायर थे, दरोबा में खुसर सीजर्स पैलेस या खुसरो के या कोई भी हो सकता है, खुसरो हों, अशोका हों, सीज़र हों, लेकिन बादशाहों के दीवारों और छतों से कोई ये तो पूछे कि ये जो चिराग कचकुलाही है, ये फ्लिकरिंग फ्लेम, ये जो लौ झिलमिला रही है हवा में, ये किसके खून और पसीने से रोशन है। वाह, चाहे ताजमहल हो, ताजमहल या कुतुब मीनार हो, या बड़े बड़े घर हों। तो एक खैर वो एक अपनी जगह पर बात है, लेकिन ये खूबसूरती जो है और ये जो इस किले में जो ये बना फिर से, ये अमीरुद्दौला के ज़माने में बना, और उनके बेटे महाराजा मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान, ओके, बड़े वाले बेटे। जी। अच्छा, यहाँ भी आप देखिए बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि हम लोगों के परिवार में मुकीमुद्दौला, जहाँ हम लोग बैठे हैं इसको मुकीम मंजिल कहते हैं। मुकी मंजिल, ओके मुकीमुद्दौला इनके पिताजी, इनके वालिद, ओके वो शहीद हुए थे। नवाब अली ख़ान उनका नाम था, राजा नवाब अली ख़ान। तो वो शहीद हुए, इनकी परवरिश अंग्रेज़ों ने की, उनके पोते ने अंग्रेज़ों के लिए बाकायदा काम किया, ओके और वाइसरॉयज़ काउंसिल में थे और सब कुछ। हमारे दादा उनके परपोते पॉलिटिक्स में थे, हाँ मुस्लिम लीग में थे। ओके, हमारे पिताजी कांग्रेस में थे, जिन्ना टाइम, जिना के आज़ादी से पहले। हमारे पिताजी कांग्रेस में थे, और हम भी लगे हुए हैं। हाँ। तो हर जनरेशन ने एक अलग अलग चॉइस की। तो इस पर ज़्यादा वो जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आर्किटेक्चर और इन चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि वो उनसे लेके जो शहीद हुए, और अब हम 1 2 3 4 5 छठी पुश्त हैं, हर जनरेशन के चॉइसेस अलग थे, चॉइसेस अलग। तो वही एक फैमिली कभी कभी किसी एक से डिफाइन हो जाती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भाई ये भी इंसान थे। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में जूझ रहा था, जो परिस्थितियाँ थीं, जो चीज़ें थी उस ज़माने में, उसको सामने रखते हुए they were making their choices. So you can't sort of, it's very difficult. History is so complicated. Just look at my family. Every generation has made a different choice. Yeah. You know. So and with every ruler of the country, ज़माना बदलता है. You know, this is the thing. So you know, and this and I think what is beautiful about this place in particular is that my father and grandfather, granduncle, great grandfather, all of them, कहीं ना कहीं वो ज़माने के साथ भी चले। अब आप सहमत हो ना सहमत हो वो अलग बात है उन चॉइसेस से, बट इवन इन मैं तो रिलेट ही नहीं कर सकता इवन इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चुरल चॉइसेस। अब आप सोचिए कि इन किलों में हम लोगों का जो दस्तूर था वो ज़मीन पर बैठने का था। कालीन बिछती थी, चांदनी बिछती थी, ये सब कुर्सियाँ तो अंग्रेज़ों की उस टाइम पे आई, अंग्रेजों के टाइम। तो ये एक ही जनरेशन में इतना बड़ा चेंज आया होगा, एक से दो जनरेशन में। यस ये सोफे भी हैं और कुर्सी भी है। आफ्टर 1800 आई थिंक, आफ्टर 1900, हाँ 18 लेट 1800 या कुर्सियाँ तो खैर हाँ, एक तरह से कुर्सी का कॉन्सेप्ट तो कुर्सी इज एन अरेबिक वर्ड एक्चुअली। ओह अच्छा, आई डोंट नो ओरिजिनली कुर्सी इज एन अरेबिक वर्ड, दे यूज द वर्ड कुर्सी फॉर, एंड इट केम, लैंग्वेज इज आल्सो स्ट्रेंज बिकॉज़ उसकी सीमाएं तो होती नहीं, सीमाएं नहीं होती दरिया की तरह एक दूसरे में मिल जाते हैं। हाँ, कितने वर्ड हम ऐसे बोलते हैं जो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, अरेबिक है, फारसी है। असल में जो भी हमको लगता है, अगर आप इतिहास देखें तो जो भी कल्चर फला फूला, यू नो द कल्चर सिविलाइजेशंस हु आर able to sustain themselves and who stay alive, they are the result of the confluence of many influences. वो जैसे हम लोग, जैसे इलाहाबाद में संगम है, हाँ, दरियाओं का संगम होता है, तो हाँ वो संगम ही में शक्ति होती है, और आदमी अगर चाहे कि हम सब अलग अलग कर दें और डाइवर्ट कर दें तो फिर वो बात पैदा ही नहीं हो सकती। तो वो ज़बान में भी है, भाषा में भी, इंटीरियर में है, आर्किटेक्चर में है, कपड़े में है, आर्किटेक्चर। अब देखिए यहाँ इंडो इस्लामिक भी है, इंडो सारासनिक जिसको कहते हैं आर्किटेक्चर, अच्छा, ब्रिटिश भी है, ब्रिटिश भी है, अवधी भी है,
बेलहरे में जॉर्जियन भी है। तो वो एक इट्स द साइन ऑफ अ हेल्थी कल्चर दैट वो जो इन्फ्लुएंस लेना चाहे ले लेता है, जो नहीं लेना चाहे वो अलग कर देता है, लेकिन उसको इतनी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होती है। तो खैर ये फैमिली की हिस्ट्री बात हो रही थी, तो ये बेसिकली हमारे हमारे जितने पूर्वज थे वो अलग अलग अपने ज़माने में अपनी अपनी चॉइसेस करते रहे। और पहले से उसी हिसाब से चेंज भी होता था टाइम टू टाइम। हाँ, ये असल में ये अवध के जो आपके लिए दिलचस्प होगा, अभी भी एक आध हैं किले। वैसे अवध के जितने किले थे ये मिट्टी के किले हुआ करते थे। ओह अच्छा। यहाँ ब्रिक थी नहीं, और यहाँ राजस्थान की तरह स्टोन नहीं था। हाँ, राजस्थान के रेस्टोरेंट नहीं था। तो ये मिट्टी का किला, ज़बरदस्त मिट्टी का किला। राजा साहब शिवगढ़ का जो किला है अभी भी वो मिट्टी का किला है। ओके। तो लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके जैसे अभी इस वक्त बारिश हो रही है ज़बरदस्त, तो वो बारिश के बाद उसमें उसकी बारिश से पहले लिसाई होती थी। और क्योंकि मिट्टी है, हाँ, मिट्टी की लिसाई होती थी। तो लिसाई होती थी। जैसे पुराने ज़माने में गांव में घर मिट्टी के होते थे, घर होते थे, गोबर के साथ लेप होता था। बल्कि इतनी हमारे यहाँ तो अभी भी इतनी गुर्बत है कि अभी भी मिट्टी के घर आपको अंदर जाके इंटीरियर में मिलेंगे। अच्छा, महमूदाबाद के एक दरिया है घाघरा और चौका, उसके पार बहुत दूर हैं वो किसी भी आबादी से, तो वहाँ अभी इतना नहीं पहुँचा है। तो वो आप अगर जाएं बरसात से पहले वहाँ, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो टेक्निक्स जो उस टाइम अभी पे लगाई गई हैं, हैं। जो कोई डॉक्यूमेंट किसी को करना चाहिए। क्या होगा शायद जिस तरह से वो अपने जो कच्चे मकान हैं किस तरह से उनको महफूज करते हैं बिफोर द मानसून्स कम। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ना, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आई थिंक यू शुड हायर अ फोटोग्राफर फॉर अ ईयर 12 महीने के लिए, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करे एंड देन गिव यू अ कंप्लीट आर्काइव। नहीं, I actually think that there is a way of I think in the last 30 years the world has radically changed. Yes, yes. जब से मार्केट्स खुली ये सब हुआ, लेकिन अभी भी जो पुराने तरीके थे रहने के, रहन सहन के, वो हैं बाज़ जगह। एग्जैक्टली। And they'll disappear. They are disappearing. It's not viable. It's not sustainable. I mean, and it's not. I mean, it's very nice and romantic. शहर में लोग रहते हैं तो कहते हैं कि गांव की ज़िंदगी अच्छी होती है, कच्चे मकान, environmentally sustainable। नए वो मार्बल सब आ गए कहना हैं। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गांव वालों से पूछिए कि बीतती क्या है। तो उनको भी पक्का मकान चाहिए, लेकिन ये है कि this is part of our heritage. तो the techniques, how do you create the mud mixture for the house, how do you Maintain that. maintain it, the thatched roofs, छप्पर जिसको कहते हैं। हाँ, छप्पर होते थे, और कड़ियाँ अभी कुछ रूम्स में लगी हुई कुछ rooms में हैं। हैं, हाँ, उसी में टांगी जाती थी। हाँ, तो कड़ियाँ लगी हुई। ये जैसे ये कारपेट है, जी we are sitting on this carpet and there are many carpets around here. They are very, very old. जी। And some carpets are torn completely from the sides. And they look so beautiful. I think you should frame that. So basically, I think we are fortunate. The Qila has weathered a lot of storms. I'm sure. बहुत, लेकिन निकला हमेशा। काफी सदियां देखी तूफानों हैं, से, काफी टाइम देखा है, मौसम काफी से, लड़ाइयाँ भी देखी होंगी। लड़ाइयाँ देखी, ज़माने देखे, तो वो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी देता है कि हम लोग तो एक और ये दीवारें उस टाइम से खड़ी हैं, मतलब सब कुछ देखने के बाद। जी। अब जाहिर है कि आपको मैं और भी तस्वीर दिखाऊंगा। इसी कमरे में जब हमारे दादा की ताजपोशी हुई थी, अच्छा, तो 1936 में, तो यही आप शायद कमरे को पहचान लीजिएगा, लेकिन ये सब बिल्कुल सजा हुआ, सजा धजा, with chandeliers and so on, and of course as time passed it's difficult to maintain these homes, things were sold and so on. नहीं, वहाँ पे कुछ फोटोज लगी हैं आपकी फैमिलीज की, जो इसी घर के अंदर ही हैं, इसी फोर्ट के अंदर हैं। उसमें देयर आर hundreds of people sitting, some British people also there. तो I can relate to that, of course. So the Qila in a sense वही है, and the most important thing I would say is that there's a mosque, small mosque. My Yes. grandfather actually built that with his own hands. Oh wow. Okay. And there are 5 imam baras. तो हम लोग मुहर्रम मनाते हैं हाँ। हर साल। इमाम हुसैन वो करबला देखे में मैंने शहीद आपके हुए videos, yes, तो yes. वो 5 इमाम बाड़े, तो वो हर साल आबाद, यानी आबाद तो यूँ प्लेस ऑफ वर्शिप है तो रहती है आबाद, लेकिन ये एक तरह से किला जो है वो कम्युनिटी और रिलीजियस सेंटर है। Yes. So because of that also it remains in a sense alive. मुहर्रम हर साल आता है,
वो कमरे सजाए जाते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं आप, लोग मैंने आते काफ़ी हैं। वीडियो देखे हैं तो आपके। ये भी है कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि वो जो पुराने ट्रेडिशंस हमारे हैं, उसको follow कर दे रहे हैं। हैव वी हैव मेंटेन देम. माय फादर, माय the ladies, the grandmother, my mother, now my brother and I are trying, you know. Your brother is here? My brother lives in England. Oh, okay. जी. So basically, I think it's what do you do with spaces like this is the more important मोर question. इम्पॉर्टेंट नहीं, जो आपके कल्चर्स हैं, जो आपके फेस्टिवल्स हैं, और बहुत अच्छे से आप रिचुअल्स देखे हैं मैंने करते हुए इंस्टाग्राम पे आपके, महमूदाबाद इंस्टाग्राम पेज प्लस योर इंस्टाग्राम पेज। और एक चीज़ और मैं नोटिस कर रहा था आपके वीडियोस में, यू ऑलवेज से आई एम अ कस्टोडियन ऑफ दिस प्लेस। आपका रोल क्या होता है इसमें? लाइक हाउ मेनी पैलेसेस लाइक दिस, हाउ मेनी फोर्ट्स, हाउ मेनी, आई एम नॉट आस्किंग लाइक प्रॉपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू, बट आई एम टॉकिंग हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू। आप उनको सबको कैसे मेंटेन करते हैं और कितनी बार जाते हैं आप वहाँ पे? नहीं, जब से मैं बाहर रहा काफ़ी ज़िंदगी हाँ में, हाँ 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 11 साल की उम्र में हम लोग चले गए थे बाहर पढ़ने. हाँ। नहीं, वो सवाल मुझे पूछना था, लेकिन आप अभी बता वो सकते खैर हम हैं। बाद में आपको हाँ, बता हाँ, देंगे. हाँ, तो वो जो खैर जब हम वापस आए, हाँ। आपको अपनी आप बीती बाद में बताएंगे. हाँ। तो 10 साल से ज़्यादा अब हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं. ओह, मैं अच्छा। परमानेंटली वापस आया था. ओके। सो कोशिश तो करते हैं कि हर जगह रेगुलरली जाएं. ये बिलहरे का किला है, वो इससे छोटा है महमूदाबाद के किले से, और लखनऊ में एक घर है. So it is very difficult because, well, we have all kinds of challenges also particular to our family. But it is very hard because so far we have kind of maintained these are homes. Yes, they are homes, of And I course. think the family also wants them to continue to be homes. And yet, in small, beautiful ways, we need to also make sure that they produce something that sustains them. Yes, They need- exactly. That's very important also. so about in 2016, I remember 2016 December में, जहाँ तक कि मुझे याद है, एक ग्रुप था जापान का, स्कॉलर्स का. हाँ। So somehow they got in touch, and they said, we'd like to come and spend a night. Okay. So I said, but I can't remember. I think there were 12 to 15 people. Okay. So I said, but we live very, it's No, please. it looks very grand, but it's very simple. No, first of all, you So I stop said- saying that to next नहीं, time. उस ज़माने में तो जिन कमरों में आप भी हैं, उसको समझिए डोमेट्री बनाना पड़ा था, क्योंकि इतने लोग थे और भी कमरे थे, तो जाहिर है कि उन कमरों की जो खूबसूरती है ना, जो अपने आप में वो खूबसूरती है, बहुत ही अलग so खूबसूरती they है। said no, we'll come and stay, and we would like to have some local food, हाँ। and perhaps you can organize a musical evening. Okay. So do you do dance or something? So I said this is dance वांस पहले ज़माने में कभी हुआ होगा, हाँ। हमारे परदादा के ज़माने, लेकिन अब नहीं होता. अब नहीं होता, हाँ। लेकिन कवाली है, हाँ, या जैसे सितार वगैरह. So they said no, कवाली. They were scholars of Islam, so they said no, this is interesting for me. From Japan. From Japan. Oh, lovely. अरबिक और फारसी बोलते थे वो लोग. Oh, wow. जापानीज. तो खैर वो आए इसी कमरे में, यहाँ पर कवाल बैठे थे, हाँ। और वो लोग, हम लोग सब इधर बैठे थे, खाना वाना हुआ. तो फिर हमारे जहन में आया कि unlike the Rajasthan model, which basically makes the entire place commercial, Yes, they make everything तो commercial. वो एक अलग है. हाँ, अलग है वो। लेकिन हम लोगों का ये, क्योंकि जिंदा जगहें हैं, कम्युनिटी भी जुड़ी हुई है, Community भी जुड़ी हुई religious festivals happen throughout the year, so you can't do that. Also, in my opinion, this place would lose its charm, Exactly. or quality. Completely, हाँ. So then I started these dinners. People can come. You can have like artist in residence. Artists. I started artists. In fact, I was going to tell you about it when you wrote to me. Okay. Then I said, "Ki kya fayda?" But we started something after that called Ilham. Okay. So Ilham. Ilham is in another Arabic word. So in religion, prophet जो होते हैं, उनको हम कहते हैं कि God speaks to them, so it's revelation. उसको अरबिक में वही कहते हैं. Okay, वही. लेकिन जो पोएट होता है, उसको अरबिक या फारसी उर्दू में कहते हैं इल्हाम. यानी एक तरह से it's a gift almost of insight. Okay. तो we called that प्रोग्राम. तो आए हैं लोग बीच में, फोटोग्राफर्स आए, एक फिल्म मेकर आए, एक पेंटर आए थे,
तो वो खैर कोविड आया बीच में, सब हाँ वो सब टफ तितर हो बितर हो गया, गया तो अब उस धीरे time पे, धीरे हाँ। कर रहे हैं. But that's what we started Ilham as a residency, writers Yes, residency. yes, yes. Some people come, they stay here as it is. जी, What they as get, it they is. should eat it. They should be happy. It's like a blessing. जी. You're staying in a palace. If you get room service here, that charm is gone completely. You don't expect room service. You know, my bathtub in my room, even the sanitary wear, the stamp is there, Calcutta and all that. And it's so fascinating. You can't change that ever. So exactly, and so anyway, so we started these things. Those things contributed a little. So people, have since then they come. Particularly Lucknow house जो है वो central Lucknow में है. So it's easier for people. Okay. Otherwise they come here, but it is hard, and it's hard because Lucknow also is just it's 1.5 hour. Yeah, but no, you asked me how often do I go, and Yes, yes, yes. it's almost a full-time job. Full-time job. And Yes. my actual full-time job is being a professor. Professor, yes, yes. So I have 2 full-time jobs, and then I have my other interests also. I write, and I'm public life में थोड़ा सा है. You have interest in Shari also, a lot. And Shari वो poetry. एक छुपे था ऊपर. But so it's difficult. एक ऐसी आर्किटेक्चर डिटेल या इंटीरियर डिटेल जो आपने कभी किसी को ना बताई हो या पॉडकास्ट में ना हो कभी किसी भी. नहीं, देखिए, कभी ना कभी हर चीज़ की बात तो हुई होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये दीवारें नहीं छुई गई. हाँ. और उस ज़माने में जो मसाला बनता था, हाँ. जब इमारत चूने का पहले- मसाला बनता था शायद. जी, हाँ. तो लखोरी ईंट होती थी, फिर बाद में लखोरी वो ईंट, yes, ईंट yes, हुई बड़ी हाँ. वाली. लखोरी तो छोटी छोटी जो ईंट होती थी. वो पतली होती थी और हाँ. लंबी होती थी. अच्छा अच्छा. वो पुरानी थी. फिर जब भट्टे आ गए तो ये ब्रिक जो अब ईंट चलती है, हाँ, वो जो बड़ी वाली, रिलेटिवली बाद की चीज़ है. तो वो जो मसाला बनाया जाता था चूने वगैरह का, सुर्खी का, इन चीज़ों का, तो उसको पहले ज़माने में आप सोचिए कि ये बड़ी बड़ी जो इमारतें थी, ये भी सांस लेती हैं. You are right. और सीमेंट जो है, Building जो also नई breathes. चीज़ है, वो सांस नहीं लेने देता है. हाँ. और ये दोनों चीज़ें आपको एक तरह से दे आर टेलिंग यू अबाउट द माइंडसेट ऑफ द वर्ल्ड. Very interesting. I mean, if you think about it, I know it is easy, maybe cheap, utility के एतबार से it is easy. तो तभी तो for ऐसा- use के ये शीशे और स्टील की. हाँ. लेकिन आप सोचिए कि क्या इनका एनर्जी वो होता है एसी चलाने में. अब यहाँ हिंदुस्तान में तराई के इलाके में या दिल्ली, गुरुग्राम और जगह जो हैं, ये बड़ी बड़ी इमारतें, यहाँ जहाँ 40-50 डिग्री होती है. सो वी हैव, आवर एंसेस्टर्स न्यू हाउ टू लिव इन हार्मनी विद नेचर. We have forgotten now. All these buildings, big, small, they were in harmony with nature. So even the masala I was telling you, चूना, सुर्खी वगैरह, उसमें यहाँ तक कि होता था कि दालें भी पड़ती थीं, अंडे भी कभी पड़ते थे. यहाँ ये जो सड़क है, ये शायद मैंने किसी बातें हुई हैं, लेकिन आप कह रहे हैं किसी को नहीं बताया हाँ, हो. हाँ, हाँ, शायद नहीं बताइए आप, किसी please. पॉडकास्ट पर नहीं जिक्र हुआ हो या किसी के वीडियो पर. तो उस ज़माने में जो हमने सुना कि वो मसाला बिछाया जाता था, हाँ. ताकि उसका देखा जाए कि वो सेट हुआ है कि नहीं. ओके. और उस पर घोड़े दौड़ाए जाते थे, अरे वाह. और घोड़े की टाप की गहराई से पता चलता था कि वो सही है या गलत है. यानी बन the गया है measurement. मसाला कि नहीं बन गया है. यानी बहुत सख्त भी ना हो, बहुत मुलायम भी ना हो. हाँ. तो आप देखिए, ये सब चीज़ें थी. वो तो खैर एक ऐसे ही, it's a story. But what I was saying earlier is that, these big buildings, see, the weather has changed by a few degrees. Yes. But it was hot then also. Yes. You did not need ACs. I mean, I grew up, I remember my brother and I used to sleep in the courtyards at night. Bijli, कल आप बता रहे थे मेरे को. although this Qila had its own powerhouse. वो पीछे है कहीं पे, मेरे वो को था बता. हाँ. किसी ज़माने में, सब बिग बिका गया. So it was electrified very early, then everything was sold. So when we were children in the 1980s, बिजली बहुत जाती थी, लोड शेडिंग खैर अभी भी होती है, लेकिन so there was a gentleman here called Zawar Sahab. हम लोग जवार दादा कहते थे. So Okay. he was a लालटेन वाला. Oh. So रोज रात को वो, आपको कमरा दिखाऊंगा मैं, वो रोज रात को 60, 70, 80, 100 लालटेनें जलाते थे, मिट्टी के तेल की. मिट्टी के तेल की. यस. और गेट से लेके वो अंदर महल सरा तक के, क्योंकि अभी भी जनाना है हाँ. पोर्शन.
जनाना पोर्शन है, और मुझे को वो उन्होंने बोला था कि पीछे आप जा नहीं सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो, मतलब बाहर से देख सकते हो। बाहर तो लालटेनें रखी जाती थी, हम लोग ज़ेर आसमान सोते थे। इतनी मच्छरदानी भी मुझे नहीं याद है, लेकिन अब तो मच्छर सोने ही ना दे आदमी को बाहर। और हवाएं चलती थी, ठंडा था, अंदर भी लेटते थे तो ठंडा था। ये क्यों? क्योंकि ये इमारतें भी जो हैं सांस उस ज़माने में ले पा रही थी। अब जो है, अभी भी हम लोग जैसे बैठे हैं, मेरे ख्याल से 28 से 30 डिग्री होगा बाहर होगा, हाँ। लेकिन ठीक है, थोड़ा हल्का सा पंखे नहीं, की अंदर तो हवा बहुत है अच्छा है। यस यस यस। So this is the thing, and I think this points to a wider problem, and it is going to be a problem because we are building without thinking about others, thinking Agreed, about very much nature, agreed. thinking about the effect and footprint we're leaving behind, thinking about the energy consumption. Even the humans living inside that. हाँ, ये डिब्बे में आदमी अब जिंदगी गुजारा, डिब्बे में। तो वो भी है कि ज़माने का तकाजा है, स्पेस नहीं है, प्रॉपर्टी प्राइसेस इतनी बढ़ गई, सब कुछ है। बट नाउ आई थिंक इट इज़ टाइम दैट आर्किटेक्ट्स डू ट्राई एंड थिंक अबाउट हाउ टू मेक बिल्डिंग्स मोर सस्टेनेबल। Only I think very few are doing it. Like if I count in India, like just 2-3 architects doing this. One guy is Bijoy Jain, if you know him. नाम सुना है। हाँ, नाम सुना होगा आपने definitely. Oh, he recently done a ramp for Louis Vuitton. Yeah. He was commissioned for that, and he made a सांप सीढ़ी for that. Yeah. So he's very famous in that. सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आपकी तालीम, आपकी एजुकेशन, थोड़ी आपकी शायरी जरूर। नहीं, हमारी तो समीर इज मेकिंग ए फ्रेम अकॉर्डिंग टू कि उसकी रील बन जाए एक बहुत अच्छी आपकी शायरी की। नहीं, हमारी तो हमको खैर याद नहीं है। अगर देखिए शायद कुछ निकल आए तो। अच्छा, एक कोविड में लिखी थी, वो अच्छी है। ओके। वो हमको लगता है उसमें ऐसा कुछ नहीं, वो सभी को छुएगी क्योंकि सभी ने उसको एक तरह से महसूस किया। हाँ, और सब कोई कहीं ना कहीं सबका असर, सबका असर हुआ उसमें। तो किसी ने ये नहीं देखा कि चीनी है, जापानी है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, सभी सब हर जगह आदमी जो सबका सब धर्म सब उसके थे। तो लेकिन मैं आज जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि 11 साल की उम्र में हमारे भाई 3.5 साल हमसे छोटे हैं, हम लोग दोनों चले गए थे बाहर। स्कूल में थे, बोर्डिंग स्कूल में थे। फिर 1 साल में बम्बई में रहा, जो मुझे बहुत पसंद आया। दिल्ली कभी इतना नहीं पसंद आया जितना हमको वो 1 साल, 18 साल का था, हाँ, 2001 में। मुझे बॉम्बे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे दिल्ली से ज़्यादा बॉम्बे पसंद मुझे बम्बई के लोग भी यानी दिल्ली में भी अच्छे लोग हैं, आप भी दिल्ली में रहते हैं, बहुत कॉस्मोपॉलिटन है बॉम्बे। लेकिन वो बम्बई में ये है कि एक नहीं, वो लोगों में अकड़ नहीं है। नहीं, वो नहीं है। हर आदमी जो है मिल जाएगा आपको सड़क पर, वो अपना काम करता है। और बम्बई हमको बहुत पसंद है। 1 साल हम वहाँ रहे थे, फिर अमेरिका चले गए थे। अच्छा, वहाँ बीए किया मैंने। फिर हम आए 2 साल यहाँ वापस, अब्बा के साथ सोचा था कि रहेंगे, कुछ करेंगे। और उसमें बल्कि उस ज़माने में मैं यहाँ किले में तकरीबन 6 या 7 महीने एक वक्त में रहा कि आप 6-7 महीने इस जी। जगह पे रहे तो थे। हम जो हमारे अमेरिका से बीए हो गया तो हम वापस आए, 6 महीने रहे। और आई वाज वेरी यंग, यू नो, आई वाज 25 या 25 यंग, 24 25 20 ऐसे ही थे। तो मेरे ख्याल से उतनी समझ नहीं थी, तो हम सोचे थे ये करेंगे, वो करेंगे, बदलेंगे, ऑफिस अच्छा सा बनाएंगे। अच्छा, हाँ। लेकिन जाहिर है कि यहाँ जो पेस है लोगों के काम करने, वो अपना है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। उसको कोई नहीं छेड़ सकता, आप टच नहीं कर सकते। तो खैर बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आई केम बैक आफ्टर माय डिग्री फ्रॉम अमेरिका। आई लिव्ड हियर 6 months, experienced how difficult it is to work because everyone had their own routine, सबको आदत थी। सबका अपना पेस है, अपना पेस होता है। एग्री। वो बहुत आसानी है कि आप बाहर रह के आए तो कहें कि दुनिया तो ऐसी चलती है, हम भी ऐसा बनाएंगे, तो इतना आसान। दुनिया बहुत फास्ट चलती है, बहुत जल्दी हम सीख गए कि ऐसा नहीं जो होता है, आपको हर जगह अपना उसके हिसाब समटाइम आई बिलीव कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि भाई इस हद तक के ना हो कि नुकसान हो, क्योंकि जाहिर है कि कभी कभी तो आदमी इतना वो हो जाता है कि आदत वो बिगड़ जाती है कि बिल्कुल। मैं एक ज़माने में यमन में रहता था। हाँ, तो रहता नहीं था, सफ़र करने गया था। तो वहाँ यमन में हम गए तो वहाँ एक पत्ती वो लोग चबाते हैं, कत। ओके। तो इट इज़ इन यूरोप इज़ क्लास्ड अ ड्रग, बट इट इज़ अ नेचुरल लीफ एंड दे चू इट, एंड वो
तो करते क्या है कि जो भी उनको काम करना होता है वो सुबह की नमाज से लेके लंच तक के करते हैं। हाँ लंच के बाद हुक्का हाँ। और ये कत और बातें करते हैं। तो आधा दिन उनका उस काम में सोशलाइज्म में गुजरता है। तो यूएन की रिपोर्ट आई कि बड़ा ख़राब है, प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो एक साहब ने हमसे कहा कि भाई हमारी प्रोडक्टिविटी हमको नहीं चाहिए, हमको ये रिलेशनशिप्स चाहिए। ये रिलेशनशिप चाहिए। हम लोग 6-6 घंटे साथ बैठते हैं, एक दूसरे का दुख सुनते हैं, खुशी की बातें होती, मजाक होता, खामोशी होती, खामोशी में एक साथ बैठते हैं और रात को हल्का सा सूप पी के वो लोग सो जाते। हमने देखा अपनी आँखों से। तो वो अब दुनिया के पीछे इतनी ज़बरदस्त तरीके से लोग भाग रहे हैं कि किसी को किसी के लिए वक्त ही नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि जो दुनिया की पेस है वो हर जगह आ जाए। मैं पर्सनली नहीं मानता इस चीज़ को, और मैं मानता हूँ कि अगर आपको मॉडर्न ही बनना है, बहुत स्लोली मॉडर्न बनना है, बहुत फास्ट आप कुछ भी करेंगे वो सब गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, उससे एक तरह से यू डेवलप अ काइंड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया यस। कि वो वही होता है कि ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हुए। Agree. तो आप एक पैर जो है वो पुरानी दुनिया में रखे हैं, एक पैर जदीद दुनिया में रखे हैं और बीच में जो है दुनियाएं यूं हो रही हैं और आप धंसते चले जा रहे हैं। और अगर स्प्लिट्स करने के आदी ना हो तो तकलीफ बहुत होगी। नहीं, मेरे साथ अभी हुआ था, मैं किसी रेस्टोरेंट गया तो मैंने आराम से उनसे, नहीं हैदराबाद आई थिंक समवेयर, आई वाज शूटिंग, मैंने कुछ मांगा, उन्होंने ला के दिया। फिर कोई चीज़ डिले हो गई, मैं बैठा था अपना फ़ोन पे बैठा था। सो दे स्टाफ कंसिडर मी आई एम अ नाइस पर्सन। मैंने बोला क्या हुआ? क्या सर यहाँ तो बहुत मुसीबत है, आज तो आपने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा नहीं, मेरे को बोलना भी नहीं था, मेरे पास टाइम था, मेरे को जल्दी किसी चीज़ की नहीं थी। सो दिस इज़ योर राइट एक्चुअली, वेरी मच एग्री। So wait, so anyway, I came back. Then I went to Damascus. आई नो दैट, Probably यस। one of the best years of my life. ओह वाह, हाउ मेनी इयर्स? One year and a bit. ओके। 1 साल मानिए, Okay. तकरीबन कुछ ज़्यादा। वो बहुत अच्छा इसलिए था क्योंकि वो नई जगह थी, वहाँ किसी को मैं नहीं जानता था। एक कमरा मैंने लिया था, ये जो चौकी जो है ये हाँ, पता इस नहीं size आपके फ्रेम में आ रही है। हाँ आ रही है। उसकी चौड़ाई इतनी थी, इससे कुछ ज़्यादा, हाँ और लंबाई इसकी 1/3 और बढ़ा दी। Okay. इट वाज लाइक अ बॉक्स हाँ। ऑन टॉप ऑफ अ बेकरी। ओके। उसमें ये था कि पलंग थी, आ जाएगा। डेस्क था हाँ। और एक कुर्सी थी हाँ डेस्क के नीचे। और अगर आप डेस्क के नीचे से कुर्सी खींच लीजिए तो इधर से उधर नहीं जा सकते थे, छोटा सा था। समझ गया, समझ लेकिन आप यकीन जानिए, अब लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही हाँक रहे होंगे या ऐसे नहीं, ही नहीं, I believe लेकिन that, yeah. उससे ज़्यादा सुकून मुझे कहीं मिला नहीं उस कमरे से। उस कमरे से ज़्यादा। एक हमको याद है, जाड़े सीरिया में बहुत ठंडक होती है जाड़ों हाँ, में, हाँ। ये कपकपी वाली। ओके। सो हमने, वो मकान मालिक जो थे वो बेकर थे। हाँ। ये बकलावा बकलावा, है, yes, तो yes. वो लोग बकलावा बनाते थे। वाह। तो सुबह बड़ी अच्छी खुशबू आती थी। हाँ। वो बूढ़े जो थे, दादा मियाँ, वो कभी देते नहीं थे। अच्छा। महीने में 1 पीस खिला देते थे, वो भी बहुत बहुत जो है ऐसे कि बहुत मिन्नतें बड़ा करने के एहसान बाद। करके। हाँ, बड़ा एहसान। लेकिन वो सुबह खुशबुएं आती थी देसी घी की और पिस्ते और बादाम और वो पेस्ट्री। वो लोग कॉफ़ी अपने लिए बनाते थे, तो खैर जन्नती बिल्कुल। हमारे लिए तो कॉफ़ी और ये इसकी मिल्क के जो खुशबू है वो जन्नत। मैंने सुना बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है सीरिया में, जो बहुत ब्लैक अच्छी। कॉफ़ी देते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप हमको एक वो दे दीजिए, हीटर। हाँ तो आप यकीन नहीं कीजिएगा, वो हीटर उन्होंने क्या जुगाड़ किया था, जैसे यहाँ हमारे यहाँ होता है हाँ। कि एक टिन का बोल था, हाँ। एल्यूमिनियम का। ओके। हमको लगता है किसी किस्म की कढ़ाई थी या कुछ हाँ। थी, उसमें उन्होंने बीच में छेद किया था। हाँ। और फिलामेंट उसमें यूं अड़ा दिया था और उसमें 2 तार फंसा दिए थे, तो वो लाल हो जाता था। ओके। तो जिसको हीटर भी बोलते हैं इंडिया में। हाँ तो उन्होंने कहा कि आप ये लगा लीजिए। तो हमने कहा ये है क्या जी? वो डिश की तरह लग रहा था बिल्कुल। तो हमने कहा ये हीटर इस शेप में। हाँ बिल्कुल यूं था, जैसे हम लोग पुराने जमाने, अब तो खैर डिश पता नहीं रहती, अब नहीं है शायद डिश। डिश अब आपको याद है डिश टीवी जब वो शुरू में वो आई, जो लगी हुई है वो पुरानी लगी, लेकिन यूज़ कोई नहीं करता यूज नहीं उसको। करता। अब तो 90% केबल स्मार्ट इंटरनेट टीवी वगैरह ये सब है। हाँ। तो हमने कहा यार ये क्या है? तो उनका हाँ बस, फिर कहने लगे एक नसीहत है, रात को बंद कर देना, क्योंकि अगर ये गिर गया तो आग लग जाएगी। तो खैर, और रात में ठंड लगती है। और रात ही में ठंडक लगती है। खैर, लेकिन वो दमास्कस में रहा, वहाँ बहुत अच्छा रहा। मैं पूरी गाड़ी एक No, I can see your face, the shine on your face. I can feel वो that. साल एक कि बिल्कुल आज़ाद तरीके से, हाँ। कोई ना जानता था, ना मैं किसी पर कोई असर डालने की कोशिश करता था। अरबी सीखने गया था, और उसी ज़माने में मैंने हमारा लिखने का सफ़र शुरू हुआ। तो हर सनीचर सैटरडे को आई यूज्ड टू सेंड एन ईमेल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉर्ट ऑफ, आई यूज्ड टू कॉल इट डिस्पैच फ्रॉम डमास्कस। और इट वाज अ ट्रैवल जर्नल। हाँ, ओके। बट टू फ्रेंड्स। वो होते उसी साल में फिर छपने लगा, इधर उधर होने लगा। अभी भी मेरे पास मेरे ख्याल से 120,000 वर्ड्स पड़े होंगे
कंप्यूटर पर। All archived properly. और सीरिया, यमन और लेबनान पर ज़्यादा लिखा था मैंने, क्योंकि यहाँ थोड़ा वक्त ज़्यादा बिताया था। सो आई डिड दैट एंड आई ट्रैवल्ड अराउंड सीरिया। अब तो खैर सीरिया डिस्ट्रॉयड हो गई। हाँ, Syria destroyed. और बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो भी जैसे हमारा भारत है, वो भी संगम है था। Okay. You know, because you see, if you look at Syria on the map, it is near the Mediterranean, it is near Europe. In fact, जो कोस्टल सीरियन हैं और जो लेबनीज हैं वो अपने को मेडिटेरेनियन मानते हैं, अरब तो मानते नहीं Okay. हैं, नस्लन अरब। हाँ, तो ये एक मानते तो नहीं एक यूरोपियन है, हाँ। एक अरब का असर है, एक एशिया का भी थोड़ा बहुत असर है, हाँ। क्योंकि सिल्क रोड और वो, और तो वो एक क्रॉस रोड्स पर है, तो उसका असर एंड वो वाकई जिसको अब इराक कहते हैं, मेसोपोटामिया, हाँ। तो वो पूरा लोग कहते हैं क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। Wow. तो वहाँ हम जिस सड़क पर रहते थे जहाँ ये बेकरी थी, उसको इंग्लिश में कहेंगे द स्ट्रेट स्ट्रीट। Okay. तो स्ट्रेट स्ट्रीट में जिक्र बाइबल में इसी स्ट्रीट का जिक्र है। Oh. और अभी भी एक How चर्च historic. उस स्ट्रीट के आखिर में है, द चैपल ऑफ एनानियस, Okay. जिसमें सेंट पॉल को एक टोकरी में बिठाल के उतारा गया था कि वो वहाँ से फरार हो जाएं, क्योंकि उनके पीछे लोग पड़े थे। हाँ। और तो वो जो खिड़की कभी ऊपर हुई होगी वो अब ग्राउंड लेवल पर है। वहाँ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, बिजेंटाइन, रोमन, ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक, मुस्लिम, अब हर इन्फ्लुएंस, जूइश क्वार्टर था, आर्मीनियंस थे। तो वो एक खैर देखिए उसी साल पे ज़्यादा मैंने हाँ, उसी साल में। नहीं, आप बात कीजिए। वो साल बहुत अच्छा गुजरा। And you studied there, right? I studied Arabic there. Arabic there. You speak Arabic also? हाँ, अब जंग लग गई है थोड़ी सी हाँ, because nobody speak here. तो कैसे बोलेंगे आप? But I speak Arabic and a bit of Persian. I'm sure you made some friends, so you call them कि okay. But now, actually, some of people I knew, like landlords, I don't know where they are. Because of the war. There's no. So anyway, War तो I don't want to talk about. How the country is spoiled. Many in front of me. हाँ, so then I left Syria, went to Cambridge. I did masters and my PhD in Cambridge. I know that. Yes. Then I came back to India. And joined Ashoka University 2016. So those You joined Ashoka 2016? I've been there for almost 10 years. Almost 10 years. I thought you recently joined. No. I've been there for almost since the beginning as the. Yeah, because that time they were in touch with me for shooting that place. So I was. So if you had come, because I was the first. I taught the first batch. तो वो 2013 में आए थे। अच्छा। 13 या 14 में। और आप पढ़ाते क्या है उसमें? Political science और history पढ़ाता हूँ। ओह अच्छा, जिसके बारे में बातें नहीं करनी। Sorry, मजाक के बारे में। हिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं। हम जैसे आपसे कल मजाक में बात कर रहे थे कि हमसे लोग अक्सर कहते हैं कि देखिए हमको पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, तो हमने कहा आपका नहीं लेना देना हो, लेकिन उसका आपसे है। तो खैर वो तो खैर अलग बात है। But history is very interesting chapter. History, look, for me the way I teach, अभी पिछले टर्म मैंने एक कोर्स पढ़ाया था। It's called Banish the Poets. Banish. Oh wow. Okay. जिला वतन करो। Poets of India. नहीं, poets. Okay. Theoretically. Okay. और इस पर था कि पोइट्री का पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में क्या किरदार रहता है। तो बेसिकली हम लोगों ने एक यही कोशिश की थी कि वर्ल्ड पोइट्री पढ़ें। और हमको लगता है असल में अगर आप देखिए पहले ज़माने में हर चीज़ें इंटीग्रेटेड एक दूसरे से होती थी। जैसे मैं आर्किटेक्चर की बात कर रहा था, तो एक विजन होता था, उसमें एक फ्रेमवर्क होता था, उसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड होता था। पोइट्री भी, आर्किटेक्चर भी, म्यूज़िक भी, कपड़े भी, रहन सहन का तरीका भी, ज़बान, खाना भी। अब वो हर चीज़ जो है वो साइलो में हो गया है। तो अब नहीं, कुछ लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो पोइट्री जैसे नहीं, पोइट्री अब जैसे लोग सोचते हैं कि लिटरेचर का जुज़ है, लेकिन पोइट्री की वजह से जो है बड़ी बड़ी चीज़ें हिल गई। तो एग्रीड। तो इसको बोलते हैं कलम की ताकत बोलते हैं। और पोइट्री जैसे हम लोगों की भाषाओं में, हिंदी में, उर्दू में, यहाँ हिंदुस्तान की दूसरी जो भाषाएं हैं उनमें, हमको लगता है कि पोइट्री का इतना अहम किरदार इसलिए भी रहा क्योंकि वो एवरीडे फिलॉसफी एक किस्म की है। क्योंकि वो निचोड़ के दो पंक्तियों में, दो मिसरों में आपको निचोड़ दे देती है किसी एक बात की, पूरी कहानी का एक। और कभी और जैसे
कोई प्रीचिंग करता है तो प्रीचिंग में वो आपसे कहता है ऐसे करो, लेकिन अच्छी पोइट्री आप गौर करिए वो आपको सोचने पर मजबूर करती है, कभी ये नहीं कहती है ऐसा कि ये करो। बिफोर आई कम टू माई मेन क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट द फर्नीचर पार्ट। आपने कभी देखा है यहाँ पे फर्नीचर नया लिया है आपने, या वही चल रहा है अभी? कोई ऐसा पीस हो जो आपने अपनी पसंद से लिया हो, मॉडर्न फर्नीचर? मैंने तो कोई लखनऊ के घर में मुमकिन है नहीं, हाँ। एक आध, यहाँ तो जो चीज़ है वो उसको या तो मरम्मत कर दी गई या चली आ रही है, जैसे ये चेयर्स ये हैं, सब वही बहुत पुरानी हैं ये सब। तो इनका मैं नोटिस कर रहा था, इस चेयर का, माई फेवरेट द आर्म चेयर। मैंने भी 2 आर्म चेयर बनवाई थी किसी से, बट वो एर्गोनॉमिक्स नहीं मिलता। उन लोगों को कैसे पता होता था एर्गोनॉमिक्स? लाइक वी आर सिटिंग ऑन दिस चेयर, आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबल। हाँ, इट डजंट, हाँ, लाइक जो वो एक्सपेंसिव वर्मन मिलर और सब चेयर आती है, वो वाला कंफर्ट मेरे को इस चेयर में। 1 घंटा हो गया मैं बैठे हुए यहाँ पे, हम थके नहीं हैं इस चेयर। तो वो क्या बात हो, और वुडन के अंदर एर्गोनॉमिक्स निकालना सबसे मुश्किल काम है। प्लास्टिक में, स्टील में आप निकाल सकते हो, मैकेनिज्म मोल्ड करके भी और ये सब करके। और अगर मैं बोलता हूँ ये चेयर 100 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है, 150 ईयर्स ओल्ड, उसके बाद भी। हाँ, ये उतनी पुरानी नहीं होंगी, लेकिन ये 80 साल 80 साल कम ही ना, एंटीक कैटेगरी। 80, आई थिंक कोई भी चीज़ जो 60 प्लस हो जाती है वो एंटीक में या हेरिटेज में आ जाती है। देखिए, जैसे मैं कह रहा था, पहले ज़माने में आर्टिजन्स जो थे, चाहे वो कारपेंटर हों या रंग करने वाले हों, या जैसे स्टेंसिल वर्क, ये जो काला, हाँ, जो ये सब स्टेंसिल वर्क है, रंग वाला, या ये जैसे ये तो खैर देखिए, जैसे हाँ ये नया है अब। हाँ, ये अभी चेंज करवा है। हाँ, क्योंकि बांस टूट गई होगी, बांस टूट गई, यस। तो ये, लेकिन ये बुनने वाले जो लोग थे, हाँ, और तमाम जो आर्टिजन जिनको कहेंगे, और मैं कारपेंट्री को तो अब तो देखिए आइकिया और ये सब मास प्रोड्यूस्ड वाली, मास प्रोड्यूस एवरीथिंग, या but these, for them, I think work had some meaning. What they were producing had something some is meaning. They had attachment when they work. work. फैक्ट्री में बन रही है तो आप तो 100 कुर्सियां एक दिन में निकाल रहे हैं, तो आदमी का दिल तो उसमें लग नहीं रहा है, वो बटन दबा रहा है, वो कट रहा है, जो भी, खैर जिस तरह से भी बनती हैं ये चीज़ें। लेकिन जो आदमी ने, जिस आदमी जो लकड़ी लाया, फिर उसने उसको तराशा, फिर उसने देखा कि ग्रेन किस तरफ जा रहा है, तो एक तरह से मेरा मानना है, नहीं, you are right, बात very much गलत हो, right, कि एक ऑलमोस्ट एक स्पिरिचुअल बॉन्ड हो जाता है। और पुराने ज़माने में आप देखिए कि अगर जैसे जो यहाँ की कारीगरी का काम है, और कारीगरों पर ये सब मैं कह रहा हूँ जुल्म बहुत होता था, क्योंकि उनको आज भी, उस ज़माने में भी शायद उनको बहुत कम हक नहीं मिलता था। उस ज़माने में गुर्बत ज़्यादा थी, तो इतनी चीज़ें, ज़रूरतें नहीं थी। अब ज़रूरतें बढ़ गई, लेकिन बट ये था कि आई थिंक देयर वाज अ डिवोशन टू क्राफ्ट। एग्री। वो सिर्फ यूटिलिटी के लिए नहीं था कि कुर्सी पे बैठा जाता है तो हम ऐसी चीज़ बना दें जिस पर बैठ जाएंगे। नहीं, ये खूबसूरत भी हो, आरामदेह भी हो, और लकड़ी भी जो है वो ऐसी हो जो रहे, टिके। आप यही देख लीजिए कि एम्बेसडर गाड़ी होती थी, कितनी 20 बरस चलती थी। अब गाड़ियाँ जो हैं वो 6 साल के बाद खटारा हो जाती हैं हाथ से। तो हर चीज़ में ज़िंदगी के, आप वो घर भी हैं, आप देखिए सब, आप इस विंडो से देखिए, ये सब जो घर बन रहे हैं, जो नए घर बन रहे हैं, नए घर बन रहे हैं। अब ज़रूरत है, ज़माना, दे कांट डू एनीथिंग, बट द फैक्ट इज नो वन हैज़ एक्चुअली टॉट टू देम अबाउट हाउ टू बिल्ड। आपने गांव में भी देखा होगा, सफ़र किया होगा कि वेंटिलेशन विंडो का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, खड़ी कर दी, ऊंची सी, खड़ी कर दी। पर गांव में तो अभी भी मिलता है, जो पुराने घर हैं, जो पुराने घर हैं। लेकिन ये जो नए बन रहे हैं, जो डिब्बे, ईंटों की दीवार वगैरह, देयर इज नो वेंटिलेशन नहीं है, रोशनी नहीं है। इट इज नॉट पीपल्स फॉल्ट, देयर इज एक्चुअली, देखिए एलीट तो अपना मजा करता है, डिजाइन भी कर रहे हैं, कमीशन भी कर रहे हैं, नई नई चीजें भी हैं, लेकिन पुराने जमाने में दुनिया इतनी बड़ी नहीं थी, तो वो जो एस्थेटिक होता था वो सिर्फ अमीरों का नहीं था। खूबसूरत, देखिए खूबसूरत चीज हर आदमी को, उस जमाने में हर आदमी को खूबसूरती भी चाहिए थी, यूटिलिटी भी चाहिए थी, हार्मनी भी चाहिए थी नेचर के साथ। अब यूटिलिटी चाहिए। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी थी अभी रिसेंटली कहीं पे, यूरोप, आई वाज इन मिलान फॉर डिज़ाइन वीक। वो पीछे जिससे गंदा पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं, पीछे से जो बैक से निकलता है घर के, सीवेज वाटर। हाँ, सीवेज वाटर बोल दो आप।
उसका जो पाइप था, वो पाइप भी आर्ट वर्क होगा। वो पाइप मतलब इतना आर्टवर्क था, मेरा मन कर रहा था उसको पीस पीस करके मैं इंडिया लेके आ जाऊं और दुनिया को दिखाऊं ये सीवेज पाइप है। तो वही देखिए, हम उस वही मैं पे कह रहा हूँ। सांप का फेस था नीचे जाके, जहां से पानी निकलता था। नहीं तो अब देखिए कि यूरोपियन वालों ने साम्राज्य के जरिए दुनिया पर हुकूमत की, हमसे ये कहा कि तुम्हारी पुरानी चीजें बेकार हैं, हाँ। और अपनी पुरानी चीजें सब सवार सब के रखी मेंटेन हैं, है, सब मेंटेन मेंटेन है। है। हाँ, तो ये एंटायर भी है। सिटी इज और अब सर्वाइविंग ऑन हम दैट। लोग अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हम हैं। अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं। हम लोग कहते हैं अरे यार, अब जैसे ये हम कुर्ता पैजामा पहनते हैं, हाँ। तो अब तो खैर थोड़ा क्राफ्ट और नो इंडियन नो, क्लोथ्स योर कुर्ता वगैरह में- पजामा इज अमेजिंग। हाँ, नहीं हमारे एक दोस्त हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पजामे में कई जो हैं लोग छुप सकते हैं। पजामा, ये आई थिंक जो ओवर साइज फैशन है, ये आप बहुत पहले से करते हैं। हाँ ये ओवर, अब हाँ सही कह रहे हैं, ओवर साइज ओवर साइज आप बहुत पहले से करते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमको याद है, हम गांव से गए थे, हम ये पहने थे, और हमारे साथ यहीं गांव के दो लोग थे, धोती एक पहना था, एक कुर्ता पैजामा पहना था। तो हम लोग ताज होटल गए थे, मैं पीछे से आ रहा था, हमने कहा आप लोग चले जाइए अंदर, बैठ जाइए। ताज लखनऊ। ताज लखनऊ, हाँ। जाने नहीं दिया, That's bad. रोक लिया था हाँ, उस जमाने। ये हाँ। तकरीबन 90 जब बना है तब की बात है। ओह, अब वो लग रहे होंगे देहाती हैं या क्या हैं, फिर ठीक हो ये गया। इंसिडेंट अभी भी होते हैं इंडिया में कहीं ये कहीं होते भी। हैं? हाँ हाँ हाँ, अभी भी होते हैं। तो और ये वही लोग करते हैं जो गांव से आते हैं, सोचो आप। हाँ ये भी ये हाँ, ये बड़ी आयरनी है कि ये वही लोग करते हैं जो गांव से आते हैं। मैनेजर नहीं बोल रहा उनको, हाँ, मैनेजर सही। तो समझदार है, मैनेजर इज वेरी स्मार्ट। ही नोज कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी उस पे। कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जी, हाँ। जी। तो मेरे को दुख इसी चीज का होता है, मैंने टोका भी एक दो बार कहीं पे, मैं जाता हूँ कहीं पे, मैंने कहा यार आप लोग वहीं से आए हो जिसको आप रोक रहे हो, ये कैसे हो सकता है? और ये तो ड्रेस कोड तो है ही नहीं कहीं पे जी। कि ड्रेस कोड से आप कैसे नहीं तो कहने का मकसद ये था कि एक तरह से हम लोगों को अपनी परंपरा, अपनी हाँ। संस्कृति पर फख्र होना चाहिए। द कल्चर, द क्लोथिंग ठीक है, स्टाइल। you have to also change. I mean, you have to change with the times, and things are changing. हाँ, मैंने But आपको as you अचकन में said, भी देखा है। I really liked what you said, is that of course we should firstly in our mind be modern. पहले Yes. तो क्योंकि आदमी कपड़े पहनने से कपड़े मॉडर्न पहनने नहीं से होता कभी है। कोई मॉडर्न नहीं हुआ आज तक, ना कभी कपड़े हो पाए। पहनने से, कपड़े उतारने से, इन चीज़ों से आदमी मॉडर्न नहीं कोई होता मॉडर्न है। नहीं होता इससे। हाँ, यहाँ पहले हो, और मॉडर्न भाई अच्छी चीज़ें लीजिए, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें छोड़ दीजिए। बट आई थिंक देयर इज अ इनसिक्योरिटी। तो जैसे हम आपको एक किस्सा जैसे बताएं, हिंदुस्तान के जो खाते पीते लोग हैं जो टूरिज्म के लिए निकलते हैं, ये वो टस्कनी जाएंगे इटली में, आपने अभी मिलान का जिक्र किया, हाँ। फ्लोरेंस जाएंगे या कंट्री साइड में जाएंगे, तो वहाँ विला बुक करेंगे, वहाँ विला के 1000 यूरो या जितना भी दे देंगे एक कमरे के लिए, और वहाँ भी चिटकी होंगी दीवारें, हाँ, पेंट छूट रहा होगा, और उसकी फोटो इंस्टाग्राम और पर कुर्सी एक टूटी हुई कोने में रखी होगी, और वहाँ खूबसूरती नजर आ जाएगी। यहाँ नहीं आएगी। और हमारे यहाँ आएंगे, कहेंगे अच्छा इस साल पुताई नहीं हुई। तो सोचने की बात है कि हम लोग क्यों इतना, अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उन्होंने उस चीज को प्यार किया है जिसको आप टूटा हुआ बोल रहे हो, उन्होंने सबने मिलके प्यार किया, तो वो जो बाहर से भी आदमी जा रहा है उसको भी अच्छा लग रहा है। हमने उसको रिजेक्ट किया है, तो हमारे यहाँ पे जो टेस्ट वाला आदमी आएगा उसको बहुत अच्छा लगेगा। एक नॉर्मल आदमी आएगा बोलेगा नहीं है तो कुछ तो कमी है, वो बल्ब वहाँ पे फ्यूज है, ये क्यों है? बट वही तो ब्यूटी है उसकी, वो बल्ब नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तालीम और एजुकेशन मॉडर्न बनने से पहले वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, और एक सिविक सेंस जिसको बोलते हैं, और हमारे वालिदैन जिसको कहते थे तरबियत। तरबियत, ओके। यानी जिस तरह से बच्चा पाला पोसा जाता है, क्योंकि वो उससे भी उतनी ही सीखता है जो स्कूल से सीखता है। स्कूल से तो आपको भाई नॉलेज कुछ नहीं है, एकेडमिक्स सीखते हो। एकेडमिक्स, हाँ, देखिए एकेडमिक्स से सीख के आदमी बंदूक भी बना सकता है, कलम भी बना सकता है, वो तो एक साइंस है, वो तो एक नॉलेज है। लेकिन आस्था वो बनाने की जो चीज़ आप चूज करेंगे, वो तो आपके अंदर की जो मूल्य हैं, उसूल हैं, व्हाट योर प्रिंसिपल्स आर, वो तो अच्छा पुराने ज़माने सिविक्स होता था, अब तो वो भी बिल्कुल एक नहीं होता, ज़्यादा उस तरह से नहीं है। तो वो तो घर ही से आदमी सीखता है। और भाषा, मेरा मानना है, जो मैं आपसे पहले कह रहा था, कि आई थिंक लैंग्वेज, वो उसको क्या कहेंगे, जैसे ज़बान ही गहवारा है जिसमें हमारी जो शनाख्त है, जिसको हम कहेंगे पहचान, पलती है। और
उभर के आती है या दब जाती है। तो लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज जो है आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड I think what is also very important today in India as we are facing, you know, in Delhi, Bangalore, आप ज़्यादा हमसे जानते हैं, बम्बई डिज़ाइन रेवोल्यूशन है, आर्ट फेयर्स हो रहे हैं, काफ़ी हो रहे हैं लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं। वो जो दुनिया एक है जो एक तरह से वेस्ट से भी टक्कर से बात करती है, हमारे डिज़ाइनर्स वहाँ जा रहे हैं, आर्किटेक्ट्स, फोटोग्राफर्स वगैरह। लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी ये नहीं कर सकता है, वो जो है अंदर भी कॉन्वर्सेशंस होना चाहिए। ऐसा कि हम लगता एक है बबल में नहीं रहते हैं। बबल में नहीं है। दूसरा मेरे को ऐसा लगता है जितने भी डिज़ाइन फेस्टिवल्स हो रहे हैं, आई गो टू लॉट ऑफ फेस्टिवल्स, गो टू एग्जीबिशंस, आर्ट फेस्टिवल होते हैं, इंडिया आर्ट फेयर होता है दिल्ली में। जब मैं उसका क्राउड देखता हूँ मुझे लगता है इस क्राउड को नहीं आना चाहिए, बिकॉज इनको तो सब कुछ पता है। जो बाहर रह गए हैं लोग, जो ट्रैफिक में फंसे हैं, जो बस में बैठे हैं, जो ऑटो में बैठे हैं, उनको लेके आओ। अब उनको एजुकेट करो, बिकॉज जो क्राउड आता है वो बहुत टेढ़े सवाल भी पूछेंगे कि ये आपने जो लकीर खींच दी है क्यों, और पूरी सफ़ेद वाइट कैनवस है, उस पर आपने एक ट्रायंगल बना दिया है, तो ये क्या है? आप हमारे यहाँ आइए शेखावटी में, हमारे घरों पर हम आपको दिखाएं कि आर्ट क्या होता है। आर्ट क्या होता है। तो ये भी आई बीन टू शेखावटी, आई बीन टू एंटायर दैट। हम आप आपस में एक ही तरह के हों, आप दूसरे की तारीफ करें तो उससे क्या फ़ायदा है? तो वो होता यही है कि डिज़ाइन हो, आर्किटेक्चर हो, ये सब एक बबल हो जाते हैं, बबल हो जाता एक है। दूसरे की तारीफ लोग करते हैं, एक दूसरे को बढ़ा देते हैं। अब मिलान में जैसे डिज़ाइन वीक होता है, इससे ओपन डिज़ाइन वीक, ठीक है, एक होता है, एक हॉल होता है बड़ा, लेकिन पूरी सिटी में वो वीक चल रहा होता है, तो एवरीबडी सी दैट। यहाँ पे नहीं होता है ऐसा। लेट्स टॉक अबाउट मुहाफिज खाना। व्हाट इज मुहाफिज खाना? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट? यहाँ किले में दो जगह हैं, एक कुतुब खाना, एक मुहाफिज खाना। हाँ। मुहाफिज खाना इज बेसिकली द रिकॉर्ड रूम। तो हुआ ये था कि जिस ज़माने में रियासत थी, तो जाहिर है देयर वाज अ एंटायर, अपार्ट फ्रॉम द स्टाफ ऑफ द किला एंड ऑल ऑफ दैट, देयर वाज अ रेवेन्यू स्टाफ। क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे, दे रूल दैट टाइम, दे एडमिनिस्टर्ड, रूलर थे एक तरह के, लेकिन रूलर टेक्निकली उसको माना जाता है जिसका सिक्का होता है। ओके। तो हम लोगों ने हमेशा जो है वो या तो मुग़ल के हम टैक्स कलेक्टर थे। ओके। अब वो आप इन ताल्लुकदार कहते हैं। ओके। तो वो एक रेवेन्यू कलेक्शन के, Okay. ज़ाहिर है उनमें टाइटल्स मिल गए और कपड़े और लिबास और तलवार हो, लेकिन असल काम उनका था कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन। ओके। जैसे ITO से लोग निकलते हैं दिल्ली में कि टैक्स निकालो, क्या छापा मारो, क्या छापा मारो। तो ये काम होता तो ये काम वो ताल्लुकदार थे, अपना सिक्का नहीं था। हाँ, समझ गया। फिर जब मुग़ल सल्तनत मुग़लिया और किला मोहल्ला दिल्ली में जो है वो वहाँ उनकी ख़त्म हो गई सल्तनत 1857 में। उससे पहले ही बल्कि यहाँ जब नवाबीन अवध के थे, क्योंकि ये लोग गवर्नर थे मुग़ल के, अच्छा, फिर इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। ओके। तो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, तो अपनी किंगडम बनाई। हम लोग यहाँ ज़्यादा करीब थे, तो खैर वो सब था। फिर इनके लिए काम करने लगे, तो इनका सिक्का था, पहले मुग़लों का था, फिर इनका था। लेकिन हम लोगों का अपना रेवेन्यू सिस्टम था। ओके। यानी टैक्स कलेक्शन, लैंड आर्बिट्रेशन, ये वो। तो मुहाफिज खाने में वो जो तमाम केस और रिकॉर्ड होते थे वो रखे जाते थे। ओके। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। आज भी अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स में जाइए, हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में तो मुहाफिज खाने होते हैं, जिसमें 1359 फसली। तो अब जो एक तो कैलेंडर हमारा ये होता है इंग्लिश ग्रेगोरियन कैलेंडर 2025 है। हाँ। एक इस्लामिक कैलेंडर होता है, ओके। 1447 है। हिंदू कैलेंडर भी होता है। हाँ, हिंदू कैलेंडर भी होता है, यस। एक फसली कैलेंडर होता है, वो रेवेन्यू फसली। फसल 1359 एक अहम ज़मींदारी एबोलिशन हुई थी, बहुत सी चीज़ें, खैर वो बड़ी लंबी दास्तान है। लेकिन वो फसली साल जो है वो अलग, वो खतौनी वगैरह पर काम आता है, तो वो रेवेन्यू का कैलेंडर होता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो आज भी हिंदुस्तान में ख़ासकर इन इलाक़ों में इस्तेमाल हो रही हैं, वो मुग़लों के रेवेन्यू सिस्टम को अंग्रेज़ों ने अपनाया, अंग्रेज़ों के रेवेन्यू सिस्टम को हम लोगों ने आज़ाद हिंदुस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो सब कागज़ात, तो वो सब वहाँ पे अच्छा, हम लोग सोचते हैं कि एक ही कैलेंडर है, उसी पर दुनिया चल रही है। आप सोचिए कितने कैलेंडर है। वही जो हम लोग कह रहे थे ना कि लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं दुनियाओं को। तो आदमी अगर देख ले, अब जैसे
होली फेस्टिवल्स हम लोग एक कैलेंडर से करते हैं, हाँ। नेशनल फेस्टिवल्स दूसरे कैलेंडर से करते हैं, वर्क शेड्यूल हमारा तीसरे कैलेंडर से होता है, आई कैल से होता है। तो कहीं ना कहीं तो मुहाफिज खाना ये था, इट्स अरबिक वर्ड। Muhafiz Khana is Arabic word. खाना इज अ पर्शियन वर्ड। Okay. खाना मीन्स प्लेस, हाउस, House, yeah. एंड मुहाफिज इज दस्तावेज। जैसे उर्दू में हम लोग कहते हैं खुदा हाफिज, Oh, तो हाफिज इज द नेम ऑफ गॉड ऑल्सो, बट मुहाफिज इज बेसिकली लिटरली द प्लेस वेयर इट इज प्रोटेक्टेड Oh, wow. और इट इज गार्डेड। तो वो मुहाफिज खाना इसलिए था, अब ख़त्म हो गया उसको, वो बिल्डिंग जो थी तहसील थी और पूरा वो था। कुतुब खाना अभी है, वो आप देखिएगा हाँ। कुतुब खाना जाके, कि जिसको किताब खाना भी लोग कहते हैं, लेकिन लाइब्रेरी को कुतुब खाना कहते हैं क्योंकि कुतुब इज़ द प्लूरल ऑफ किताब, Okay. अगेन इन अरबिक। तो ये है। ये वाले वर्ड्स आप अभी भी लाइक लेट्स से यू गो टू अशोका यूनिवर्सिटी टुमारो, वहाँ पे आप कुतुब खाना बोलेंगे? नहीं, लाइब्रेरी। वहाँ तो लाइब्रेरी, वहाँ तो हिंदी, क्योंकि वहाँ तो साउथ और नॉर्थ ईस्ट और हर जगह से लोग हैं, तो इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं। हाँ, नहीं लेकिन जैसे आपस में हिस्टोरिकल इंटरेस्ट वाले लोग होंगे तो दे लाइक टू नो दीज हाँ, वर्ड्स। no, so obviously, and I think words also tell stories of, in a sense, if you think about it, words are prisms into a culture's consciousness and mind. ओके। You know, वो जो ढल के लफ्ज़ आते हैं, वो उस परंपरा, उस संस्कृति, उस माशरे के लोगों के जहन की अक्कासी करता है। तो यू नो, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक, जैसे मुझे लगता है कि एक जो सादगी लेकिन खूबसूरती, शीरीनी अवधी भाषा में है हमारी, जो यहाँ बोली जाती है, वो और चीज़ों में नहीं है। हाँ। लोगों का मानना होता है कि उर्दू में एक कैफियत होती है, हाँ। हिंदी में अपनी एक बड़ी, आप हिंदी कविता सुनिए, अच्छी कविता हाँ, हो, अच्छे से सुनी तो जाए। हर भाषा का अपना, आप ये सोचिए जैसे हम लोगों की एक पर्सनालिटी होती है, तो मेरा मानना है कि भाषाओं का भी होता है, भाषाओं एक पर्सनालिटी होती है, इमोशन होता है, इमोशंस होते हैं। और वही इमोशन फिर ट्रांसलेट होके इंसान में भी आ जाता है। एक बहुत पहले मैगजीन आती थी हंस, अब मुझे लगता नहीं वो आती है, स्टार्टेड बाय मुंशी प्रेमचंद, ही वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ हंस मैगजीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी। हाँ, वो स्टार्ट वहीं से हुई थी, बनारस से। बनारस से, शायद। हाँ, बनारस इलाहाबाद, तो वो अब नहीं मिलती है। अब तो हम देखते हैं, अशोका की आप बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से 5 मिनट से ज़्यादा कोई कुछ पढ़ नहीं पाता है। हम लोगों को पढ़ाने में भी बड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज यू नो नो वन हैज़ अटेंशन स्पैन्स। इंस्टाग्राम, फेसबुक हैव रूइंड। नो, बट स्टूडेंट शुड डू दैट एटलीस्ट, मतलब। हाँ, बट इंस्टाग्राम इज रूइंड इट ना, आपका ब्रेन जब रिवायर हो गया है, ये नचा नचा के दुनिया, हाँ, रील देख बैठे हैं रील देखते रहे। अब 30 से अभी हम हमारे एक दोस्त हैं, जाने वाले हैं लखनऊ में, जो बहुत अच्छी रीलें वगैरह बनाते हैं, तो हम उनसे पूछने लगे कि क्या है आइडियल लेंथ। हाँ, कहने लगे अब और भी, पहले 90 सेकंड्स थी, फिर 1 मिनट हुई, अब 30 सेकंड्स to 45 सेकंड्स में पूरा अटेंशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है आदमी, but this is kind of storytelling, 30 सेकंड में you tell the entire story, this is also magic। हाँ, वो बिल्कुल वो अपना हुनर है, लेकिन हम लोगों पर जो असर हो रहा है उसका, हमको 30 सेकंड में अच्छा लग रहा है, 5 मिनट पढ़ा, उसमें जो कुछ मिल गया, फिर जहन चला गया जेब की तरफ से। हम अक्सर कहीं ये टॉक्स देने जाते हैं, तो अक्सर हम लोग तस्बीह, जैसे माला जिसको कहते हैं, पुराने ज़माने में लोग जपते थे, हिंदी में कहेंगे जपना, हाँ, और उर्दू में कहेंगे तस्बीह पढ़ना। I used to do chant with the static mala or हाँ, something तो like, वो बुद्धिस्ट मंक्स भी करते हैं, हाँ, और क्रिश्चियंस भी, रोजरी जिसको क्रिश्चियंस रोजरी कहेंगे, that is for the प्रेयर, वो जपते हैं एक भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का एक नाम कोई लेके, आप आंखें बंद करके, तो जैसे हम लोग यूं करते हैं, बुद्धिस्ट धर्म के यूं चलाते हैं अंगूठा, वो खैर अलग है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन अब आप देखिए, अब तो ये बदल गया, अंगूठे का काम ही अब ये है, अंगूठे का काम ये है, ये चल, बस ये चलना है। तो हम अंगूठे का, आप दुनिया इतनी बदल गई है कि अंगूठे का काम बदल गया। और यही ये जो छोटी सी मिसाल है, यही आपको सब कुछ बता रही है। एक और चीज, आई थिंक दिस इज मे बी अ लास्ट क्वेश्चन और समथिंग, आपका यहाँ के लोगों से कनेक्शन क्या है कल्चरली? मतलब जैसे फेस्टिवल्स होते हैं,
ईद होती है, काफ़ी तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, एंड यू फॉलो आई थिंक आई बिलीव एवरीथिंग हियर, काफ़ी much लोग as आते possible, जी। हैं। हाँ, तो उसका पीपल आर कनेक्टेड विद दिस पैलेस ऑल्सो, फोर्ट ऑल्सो, जी दे आर ओन योर ओन पीपल, दे आर लोकल पीपल्स। जी। हाँ, तो उनके साथ भी कनेक्शन हम लोग कहेंगे हमारे हम वतन, हमारे हम वतन। अच्छा, हमारे हम वतन। So no, there's a deep connection, but I think also the nature of those connection changes. With the Just as I was saying with my family, every generation changed, the house changes a little bit, you know. So that I have tried hard because you know you cannot expect people just because you are someone or you're born into a family कि ये नहीं साहब आपको तो हमको ऐसे बात करना चाहिए या वैसे बात करना चाहिए. you are right, time changes, yeah, I agree. No, and I think it's important also. No one should feel so entitled. You know. Okay. But what I found is that apart from the religious festivals, cultural festivals, वगैरह, लोगों की अपने खुशी है, गम है, शादी है या किसी का आप सब में शरीक होते हैं। हाँ। कोशिश करना, तो और मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा एफर्ट करते हैं तो उधर से उसका दुगना वो आता है. एग्रीड, वेरी मच एग्रीड, या तो और ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है, हर जगह है. हाँ, What I think is very moving for me is now, despite you know, जैसे हम लोग कह रहे हैं इस पॉडकास्ट में बार बार ये बात आई कि दुनिया की रफ्तार कुछ और है और ऐसी छोटी जगहों में ज़िंदगी की रफ्तार कुछ और होती है. नहीं, छोटी जगह नहीं बोलेंगे इसको, मेरे ख्याल से यू सिटिंग इन अ पैलेस विद द पेस। नहीं, छोटी जगह माने इलाका, ये हिंदुस्तान का छोटा सा कोना है. कोई बहुत बड़ी जगह उस माने में नहीं है कि ये कोई जयपुर और ग्वालियर. हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि वी आर सिटिंग इन अ कनॉट प्लेस के हाउस में। जी जी जी. तो ये जो है, पीपल फील दैट द थिंग्स दैट वी आर डूइंग, द रिचुअल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड सो ऑन, उनको लगता है हमारा भी स्टेक इसमें है. That I feel with the emotion when I see the videos, the how people are standing. This I notice somebody is कुछ बजा रहे हैं वो, और बहुत उनकी पूरी आंखें बंद हैं, तो I can feel that connection. You are right. तो वो and I think that's we are fortunate. वही बात फिर वही हुई ना कि जैसे ये इमारत बनाई, किसने बनाई अब हम नहीं जान सकते. किसी ने रिकॉर्ड, मुमकिन है कहीं कोई फाइल निकल आए कि ये मजदूर आए थे और ये, लेकिन मैंने तो नहीं देखी. अब निकालने को तो जुलूस निकलते रहते हैं, लेकिन हम लोगों की आई थिंक खुशकिस्मती है कि पीपल फील दिस इज ऑल्सो देयर हेरिटेज, it is their culture, they want to be part of it, they have a stake in it, they have a say in it. So also, you know, whenever we important days of the year, we call people from the community, आइए बताइए क्या बेहतर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. And I think that's what sustains it. किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है. नहीं. और जिस तरीके से आपने किया है और जिस तरीके से यू रनिंग दिस प्लेस एंड यू हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस आल्सो. हाँ, सोशल मीडिया इज अ स्ट्रेंज थिंग. मैंने तो सोशल मीडिया जब शुरू किया था, महमूदाबाद का पेज 2016 में, वो आम बेचने के लिए शुरू किया. हाँ सही में एक आम, और आप कुछ फैब्रिक से कुछ बनाते थे यहाँ पे कुछ, मैंने बहुत पहले देखा. नहीं, वो मेरी वालिदा का एक है, किलासाज, एक अटेलिये टाइप का है. तो वो औरतों के लिए, हाँ वो नहीं, वो कई चीजें बटवे, कई चीजें, हाँ. तो दे यहाँ इन ऑर्डर टू मेक द वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. एम्पावर्ड तो बहुत बड़ा लफ्ज है. आई थिंक we all learned from her philosophy that you empower a person financially, they will make their own decisions. बड़े लोगों को आगे ज़रूरत नहीं कहने की ऐसे करो, ऐसे ना करो. आप उनको बस अपनी जगह पर स्टेबिलिटी दे दीजिए. फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही सबसे बड़ी चीज़ होती है. तो she started this project called Kilasas. उसकी सेल्स काफ़ी ज़्यूरिक और न्यूयॉर्क और लंदन वगैरह, काफ़ी म्यूजियम, still going on, अभी भी है. अच्छा. तो मैनचेस्टर टेक्सटाइल म्यूजियम, कैलिको. Oh wow, that's interesting. हमको लगता है एक ज़माने में यहाँ वो आई थी मिसेस कैनेडी, जैकी. Okay. उनको दिया. तो उनकी कुछ पीसेस शायद फिर मेट में गए या कुछ. ये उस टाइम से चल रहा है. हाँ, ये उस 90, वो शायद 80s में आई थी. या जब भी नहीं, हाँ 80s में आई होंगी. हाँ, good 30-40 years. And she started it in the early 90s, 92 I think. Okay. So वो था इंस्टाग्राम पेज, फिर उनका भी है. तो यही आम, हमने सोचा कि हमारे आम बड़े अच्छे होते हैं, तो दिल्ली में ले जाके, तो वो हमने एक, जैसे शादियों में जाता तो वो तोहफा जाता है में, और प्लास्टिक की पन्नियां लगा के. नहीं, प्लास्टिक नहीं था हमारे सबसे. तो वी हैड क्लॉथ,
Okay. और लचका लगा था क्लॉथ पर, उस पर वैक्स की स्टील थी सील, और आम पर स्टैम्प था कि ये चौसा है, ये लंगड़ा है, ये दशहरी अगर है। उसकी कोई फोटो आप हमें दीजिएगा, हम पड़ा है लगाएंगे इंस्टाग्राम उसमें। पर। अच्छा, इंस्टाग्राम पे है, हाँ, तो वो हम वीडियो में भेज लगाएंगे। देंगे आपको। हाँ, तो सोशल मीडिया इज ऑल्सो अ फनी थिंग एक्चुअली। टॉकिंग ऑफ कम्युनिटी, हाँ। ये तो खैर ऐसे ही मजाक हो गया। हम्म, मैंने देखा कि ये महमूदाबाद में अक्सर जो महमूदाबाद पेज है उसके ज़रिए मैं लाइव कास्ट करता हूँ यहाँ की जो जो रिचुअल्स होते हैं, हाँ हाँ हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पीपल हैव रिटन टू मी फ्रॉम कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जो यहाँ से हिजरत करके चले गए। उसकी तो कोई बाउंड्री नहीं है, वाह। तो वो कहते हैं कि नहीं, नाउ वी फील लाइक वे, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स क्रिएटेड। एक तो ये कम्युनिटी है जो अभी है यहाँ, हाँ, एक वो कम्युनिटी है जो अब चली गई अपनी मजबूरी या जिसमें भी, लेकिन अब वो थ्रू सोशल मीडिया, आई नो पीपल, बहुत लोग कहते हैं सोशल मीडिया ख़राब चीज़ है, ये है, नहीं, लेकिन ऐसा उससे अच्छी भी चीज़ें हैं। हाँ, अच्छी भी तो दे आर एबल टू वर्चुअली पार्टिसिपेट कम से कम। कोई किसने बोला था आप इंटरनेट से बम भी बना सकते हो, इंटरनेट से किताब भी लिख सकते हो, तो सोशल तो वो तो मीडिया वैसे आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। I think we'll get good 40 minutes, 45 minutes. Thank you, sir. Thank you so much. Lovely meeting you. Thank you. Thank you for your hospitality, lovely food, and very good people work here. दैट्स द मेन थिंग। That's the main thing. Very good people, and they gave us company. Like we sitting alone, वो हमारे साथ आके बैठ जाएंगे. And thanks to Manav. Very important. थैंक्स टू मानव।